पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। आज का जो Yeah. पॉडकास्ट है वो है एपिसोड नंबर 8 8 Okay. है ना। और आज के हमारे गेस्ट हैं गार्गी सिन्हा, और गार्गी सिन्हा ही अपना इंट्रोडक्शन देंगी। Okay. आप Oh, all right. I was not prepared for this, but कोई बात हाँ, नहीं. So glad I was not prepared. It's going to be more genuine now. यस, So, okay, let's see. I am a person who's just got a law degree. I just graduated last year, and it was something I did not want to pursue. So I'm an artist now. And art was something I always wanted to do. So that's what I'm doing. And that's basically my story. I come from that typical Indian family, brown family, where your parents want you to do something really serious, like be engineering or like become a doctor or stuff like that. समझा मैं। And they want me, and they saw that I've taken arts, so there's no scope I could go for anything like that, because that needs science. So then they were like, lawyer banjo, civil services kar lo. And I was like, nah, no, that is not for me. And I'm glad I realized it in time. Like my second internship in college, and I realized I won't be able to do law. So it took me all these 5 years of my degree to like convince them that I should be doing something in a creative field. True. And I was finally able to like get them to understand, and now I'm doing what I love. तो एग्जैक्टली तू क्या कर रही है? आर्टिस्टिक तो ऐसे करके इतने बड़े बड़े चीजें हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? Okay, so I basically specialize in making mandalas at this point. Matlab, they are my strength. So most people who come to me for buying art and getting customized stuff made go for getting mandalas. ओके, And other than that, I do make a lot of stuff, like I'm trying my hand at abstract art. I ओके, can paint. I won't say I'm exceptionally good, not as good as I am with mandalas, but I paint, and I basically do as many things as I can, as my brain can think of. I try to make art on different surfaces, and I try to like come up with my own style after seeing multiple things that other people are doing or that I see out there on the internet and stuff. So ओके, I do a lot, but I specialize in making mandalas. ओके। सो व्हाई मंडालास? मतलब क्यों एकदम यू हैव दिस होल बैकग्राउंड? मतलब आई रिमेम्बर यू डूडलिंग एंड हम दोनों ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। आई रिमेम्बर दैट। Yeah, cool. हाँ, एंड यू गिफ्टेड मी वो द कॉमिक बुक। आई रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर दैट? Yeah, we made comics too, no? तो बट अरे नहीं, अरे वो कॉमिक का नाम भूल गया जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके से 3 बाल होते हैं एंड द पपी। अरे Peanuts? हाँ हाँ, पीनट्स, हाँ हाँ, ओके, हाँ वही, Peanuts. हाँ 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 हाँ। तो मुझे याद है वो सब। तो हाउ मंडाला, मतलब एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे यू जस्ट डूइंग फॉर कोई फन दूर और दूर तक फिर रिलेशन नहीं है mandalas का suddenly यस, कैसे? हाँ, Yeah, so the thing is, when I was in college and I was forced to study law, and I was trying to come to terms with it. Tab, on the side, I would still draw, obviously, for essay, time pass, career, and whatever. So um I used to sketch normally and shade and everything like people usually do. हाँ, So I made a couple of sketches and I put them on my art page. And so ओके, there's this guy who was a mutual friend. I didn't really know him, but we'd just become Instagram friends. And he has this really aesthetic profile and everything. So he texted me one day and he said, you know what, Gargi, what you should do, I think you have the talent for it. You should get an off-white sheet of paper, get ओके, a couple of microns, and start drawing mandalas. And it was ओके, something he specialized in. He was extremely good at making mandalas even at that point, like 5 years ago, I think. ओके, And he had the level of precision and that level of accuracy that only someone who has put in a lot of effort and has practiced their skill enough would have. So
when this guy said that you should do this, I kind of looked up to him at that point. So, I was like, okay, yes, definitely I'll do this. If you're saying I should do this, then I will definitely do it. And so I did, and that's how it just happened. I made a few, and then there was this friend who was like, can you draw this on like a diary cover or something for me, and Okay. I'll pay you for it. And that was the first time that somebody said they would pay me for my art, and I was like, okay, wow, really? And Yeah, that's the feeling. That's and the that, feeling. Huh? yeah, I was surprised. I was like, why would you would want to spend your money on something I'm making? So Huh. that was very surprising for me. And that's how it started happening. That's how, so the word got out, and people got to know that there is this girl who draws decent mandalas and is selling them and makes them on various things. So, and basically diary covers, they got popular and everything. Okay. And then that's how all of it began, and I kept studying more and more about it. I saw what everyone else was doing and what I could do differently, and how I could come up with a style which was very unique, but Okay. which was also very inclusive of all the diversity that exists in the field of art. Okay. So I try my best to make my mandalas so unique that you wouldn't see any other mandala artist doing the same stuff. So, I mean, basically, that's how it I feel began, and that. that's where it is now. So what all do you मतलब किस किस चीज पे तू बनाती है usually mandalas? Okay, तो मैंने चालू किया था डायरी कवर्स से. I still do that. Okay. That's something which is very popular. जो one of the major things that I sell a lot. So Okay. diary covers of different sizes, Okay. and I also I can make normal sheets of paper which you can then get framed. And other than that, I make art on wood slices, the ones Okay. that are like they come in different sizes and you can hang them or like put Yeah. them on your table. And I make bookmarks also and stuff, abstract ones, and also the kind that have like really detailed mandala design kind of. Okay. And and okay, so like, yeah, this was kept right here. This is one of the piece someone just like ordered and got commissioned, asked me to make. So see. थोड़ा थोड़ा क्लोजअप थोड़ा थोड़ा क्लोजअप लोगों को देखना चाहिए कि कितनी मेहनत और कितना डिटेल्ड वर्क है. This is obviously not even close to my best, but this is what I have right now to show you. So, and yeah, so I draw mandalas on basically anything that anyone asks me to. I can do it on a piece of cloth also. Like, I've been thinking for the longest time I should get a beautiful piece of tussar silk and like Okay. make something nice on it, and that would be like really cool. So yeah, I think what else why can't I recall? Yes, I draw stuff like not just mandalas but also like psychedelic trippy art on boxes, wooden boxes. Okay. So yeah, I do that also. ये तो मेरे को नहीं पता था. ये चीज तो मैंने नहीं देखी कभी. ओके. क्या बात ओके. कर रहा है? हाँ, कैसे? ये चीज मेरे को याद नहीं आ रही. ओके. मतलब आई हैव सीन अ साइकेडेलिक स्टफ क्योंकि यू try to melt and I think that's your style कि you try to melt the mandala wala thing. It's okay. Yeah. So your mandala wala thing with your psychedelic stuff which Hmm. is kind of like ooh, ये तो मैंने कभी नहीं देखा. Like I have seen a lot of mandalas. Hello, hi. Yeah. Okay. Hello Catty. Yeah. Hi. Hi. Okay. Hmm. Okay. Okay, sorry. Sorry. I get distracted with cats too. मतलब कोई भी pet हो, I'll get hello, hi, how to be. Okay. So He just wants to play, let's ignore him. Yeah. so the thing is मैं कहाँ था? So I've seen a lot of mandalas and I think your style is like something which I haven't seen कहीं भी क्योंकि usually I've seen कि मतलब what एक minute first of all wait before everything you need to tell people what exactly is mandala like लोगों को क्या depict करता है if you know about it कि कैसे लोगों को क्या उससे क्या मिलता है one of all the feeling एक तो वो भी बात कर सकती है and if you know any history about it you can tell about that too.
Okay, so they basically mandalas का ये है कि the word mandala comes from the Sanskrit word mandal, Okay. and mandal literally translates to circle. So that's why you will notice that most mandalas, most of them, are in circular designs. Okay. And तो जो अब ये जो है ये ट्रेडिशनली ये और इनका ट्रेडिशनल और रिलीजियस वैल्यू बहुत होता है बिकॉज दिस इज वेयर द रूट्स लाई. ये बुद्धिज्म में देखो, हिंदुइज्म में देखो, a lot of religions, you know, have had in the past, throughout history, have had that kind of art jahan pe you see a lot of detailed circular design. Okay. And most of the time जिसमें there would be a deity in the center, a god or something, or a symbol of you know positivity or something like that, and there would be a lot of design around it. So Okay. I obviously studied, and you know what people, why people made something like this, what was it used for, if it had any use at all, except for just like putting it somewhere. So I found out that mandalas were used by people जो you know साधना कर रहा है अगर कोई या कोई मेडिटेट कर रहा है, तो it was used as a tool for meditation. अच्छा. So because what happens is, and this is genuinely something that I've also noticed happening to people, ki the moment you look at a very well made, or in fact any sort of mandala, when you look at a really nice mandala somewhere, it captivates you immediately. So you find yourself in that moment like busy looking at it and looking at all the design and the complexity of it, but also the simplicity because it's so symmetrical and circular. And it's just, it makes your brain wonder how it's made. And in that moment, you're, because of that, because of all of those thoughts that the mandala is triggering in your head, you find yourself completely grounded in the present moment, which Okay. is why it's used as a tool for meditation. क्योंकि आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो वो मोमेंट में, आपने सडनली कुछ ऐसा देख लिया है, आपको कोई ऐसा स्टिमुलस मिला है अपने एनवायरनमेंट में से जिसने आपका एंटायर अटेंशन कैप्चर कर लिया है. Okay. सो दैट इज व्हाट उसका मेनली पर्पस काफी हद तक पहले एटलीस्ट ये था कि पीपल वुड यूज इट एज अ टूल फॉर मेडिटेशन. एंड फिर there were a lot of people who also, when they closed their eyes and they meditated, they would visualize mandalas in their minds. This would help them expand their mental horizons and achieve higher levels of consciousness. ये सब भी था. तो Oh. it has always been pretty cool, this form of art. And uske baad se, when people and artists started exploring it, people like myself, तो हमने उसमें बहुत सारा वेरिएशन लाना चालू कर दिया. एंड लोगों ने उसको बहुत अलग अलग स्टाइल्स में बनाया. देयर वर मंडालाज ऐसे, अब जैसे कुछ बुद्धिस्ट मंडालाज होते थे जिसमें यू विल आल्सो सी क्या बोलते हैं, structures with corners like rectangles or triangles and everything, as well as circles and everything. And they were also, they had a lot of religious value, बहुत auspicious consider किया जाता था. तो बहुत सारे जो temples होंगे उनके, या monasteries होंगे, या ऐसे कुछ भी जगह होगी that has religious value, वहाँ पे ये सब दिखेगा. Okay. And also another thing is कि mandalas in themselves, unka jo meaning hai, that has a lot of depth to it. So mandalas signify basically everything, anything and everything that exists. It's mandalas exist everywhere. Anything that is circular, and yeah, anything that is circular basically can qualify as a mandala. For example, our eyes, the sun, the earth, the moon, metaphorically speaking, so you can, the circle of life, the circle you have in your life, the people थोड़ा around थोड़ा you. ज्यादा डीप नहीं हो गया हम लोग? हल्का हल्का सा ज्यादा डीप नहीं हो गया हम लोग? Yeah, it's all of that is there. It's really, really cool because so you exist with a mandala around you, right? So you are you're at the center of it, and you have your circle of friends, your circle of family, your circle of people whom you know, your work, everything. That's layers to it, and these multiple circles form the whole mandala of your life. So yeah, it's
pretty cool. इससे मेरे को समझ आ रहा है कि अब मेरे को मंडाला अब मैं मंडाला जो तेरे से बनवाऊंगा उसमें मेरे को क्या चाहिए एग्जैक्टली अब तो पक्का मेरे को पता है कि मैं क्या बनवाने वाला हूँ I'm glad. आखिरकार It's मेरी आंखें खुल गई भाई मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ कि मेरे को मंडाला बनवाना है बट मैं सोच नहीं पा रहा कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए अब मेरे को पता I'm है glad देखो पता है देखो क्या चाहिए because it makes things a lot easier for me when people want customized art and they tell me exactly what's in their heads, so I'm able to create it better. अच्छा तो ओके तो डू यू वांट टू टेल मी अबाउट द ऑडियंस टू कि कैसे यू स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ मंडाला Yeah, okay. So it's very simple. Okay. Now the thing is कि मंडाला ट्यूटोरियल्स आजकल इतने सारे मंडाला आर्टिस्ट हैं और इतने सारे ट्यूटोरियल्स you'll find them on YouTube and everywhere and people doing online workshops because of corona, so a lot of information is out there and to be honest it's no rocket science. तो ऐसा नहीं है कि वो जो ट्यूटोरियल्स में जो ऑलरेडी लोग बाहर बता रहे हैं उससे मैं कुछ अलग बता रही हूँ, बट अगर हम एक मतलब if we were still to go through the process, it's very simple. Just get a sheet of paper for yourself and preferably, if you know, for the sake of aesthetics, if it's off white, good for us, good for you, whoever ओके is drawing. हाँ So that's how I started at least. And get yourself black pens. Any pen would do ऐसे तो, but to begin with, why not black? So and you know so you have basic दो main चीजें that you need. Other than that, if you so there are people who draw mandalas without drawing a grid first with pencil and everything, and there are ओके people who use grids for more accuracy, so you can do it both ways. If you want to make a grid, which is the better option I feel, because I also make grids for ओके more accuracy and symmetry and everything. So you know, you just get one of these that we have always used in school. प्रोट्रैक्टर Very नहीं simple. नहीं नहीं Yeah. नहीं And yeah, हाँ प्रोट्रैक्टर but बोलते थे you हाँ draw a lot of circles. हाँ And then there is also this other tool that people use now to make their markings. So it ओह has ओके हाँ all these markings 360-degree, ओके and you can mark, you know, sub her degree pe apna, and you can draw lines, so that will result in something which looks like this. I was working on this abhi, ओके हाँ so this is like a complete grid right now. ओके समझ गया मैं Yeah, so now when you have your markings ready and you know कि कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ से कैसे चालू करना है. So now usually the process of making a mandala requires that you start from the center and go towards the layers outside. That's how traditionally people do it, but I think you should do it whichever way you like it, because Okay. I am somebody who tends to get why did I say gets? It's okay. I am Conscious नहीं somebody conscious नहीं I am somebody who tends to get bored. So even while I'm making a mandala, so there are chances, you know, when I start making a layer, I'll, you know, I'll go halfway, I'll make uska sab utna, and then I feel like, nah, I want to do something different now. And then I'll go randomly start another layer, and then I'll come back to this layer. So do it whichever way you want and you like. And if you're a beginner, it would really help if you go and see what other people are doing, look at their designs. Don't copy their designs. Even if for practicing you're copying their designs and you're putting it up anywhere on any online platform or showing it to anyone, tell people that it was not originally your idea and you've copied someone's design, please. So which people usually don't but हाँ I do get yeah, that people usually don't. I mean, but that's the right way to that's the ethical way to do it. Okay, and what else was I saying? Yeah, you know what? This reminds me, I had an idea. You and I, we should also make a video about um, having a discussion about how people should not copy other people's work, and how it doesn't just harm the other person whose work you're copying, but also yourself. दो So मिनट I'll के लिए discuss that. 2 मिनट के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं तू होस्ट बन जा है ना और फिर मैं वो कर लेता Yeah, I mean, हाँ, I was नहीं 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 मजाक मजाक में हाँ I do have to I talk know, about I this know.
But let's talk about this later, okay? Let's Hmm. talk about this later, because I was thinking of making a video like that alone about ethical artistic practices and stuff like that. But it occurred to me that it would be better if I'm doing it with somebody. Hmm. So yeah. So I was saying about making mandalas. You can take designs for references and draw whatever, whatever speaks to you, whatever design speaks to you. And start small and Hmm. start simple with bigger designs, not too minute ones, so that because what was I saying about making mandalas? Hmm. So I was saying start small, don't make designs that are too complicated, Hmm. because kya hota hai ki there are a lot of times most people, when they start making something, even if they are doing it for the first time, हम एक certain expectation से करते हैं वो चीज को, unconsciously or consciously, Hmm. but we have a certain expectation of how we want it to look in the end. And my free piece of advice to you would be, don't do that to yourself. Just have fun with it, because that's what making mandalas is about. It's only if you start having fun with it is is when you will like enjoy the process enough to do better, to because I've seen that normally it requires people patience to sit for that long and make all of those designs, go through the whole layer of all those circles, multiple circles Hmm. that make the whole design. So if you want to, अब लोग मेरे को पूछते तुम में इतना पेशेंस कहाँ से आता है, मुझे पेशेंस की जरूरत नहीं है, मुझे मजा आ रहा है वो चीज करने में. True. तो इसलिए आई वुड से कि दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, कि खुद से एक्सपेक्टेशन मत करो बहुत टट्टी बने, खराब बने, चलेगा. समझ रहा मैं. बस एंजॉय करो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, नया कर रहे हो जो शायद तुमने नहीं किया पहले, और किया भी है तो क्या है, अपने लिए बना रहे हो ना अभी. तो वही. जब किसी और के लिए बनाना हो तब थोड़ी चिंता करना. तो एक्चुअली पता है ये चीज़ ना सब लाइक हर एक चीज़ में है, क्योंकि दिस इज देयर इन ऐसे. अच्छा, आई टेल यू अबाउट लाइक वीडियो एडिटिंग. ओके, लाइक वीडियो एडिटिंग करने में सिर्फ टाइम लगता है. ओके, देयर इज दिस प्रोसेस बट आई एंजॉय इट. ओके, क्योंकि ओ मैं यहाँ यही डाल सकता हूँ, ओ ओके ये पॉइंट है ना. तो ये सब चीज़ आती है. वैसे यू हैव दिस मंडाला के अंदर कि यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि एंजॉय करना है. क्योंकि एंजॉय नहीं करते ना तो वो काम लगता है, वो काम नहीं है. हाँ, हाँ. है ना. मतलब आई एम डूइंग दिस यूट्यूब थिंग ऑल्सो, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं काम करना चाहता हूँ, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई क्रिएटिविटी या जो भी है. तो आई थिंक सब में ये चीज़ है. मुझे लगता है हर एक चीज में आर्ट है. ओके, लाइक कोडिंग भी एक आई आर्ट एग्री. है. आई कोडिंग भी एग्री. एक आर्ट है. हर चीज आर्ट है, दैट इज वेरी ट्रू. बट इनफैक्ट आई हाँ, तो सॉरी, बोल 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 बोल. सॉरी सॉरी कंप्लीट कर. मतलब आई डू एग्री कि सब चीज आर्ट है, बट फिर सब चीज मैथ्स भी है. क्योंकि क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर है, तो आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय आर्ट एंड एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय मैथ्स. दैट क्योंकि इज ट्रू. तू सर्कल नहीं बना सकती पहले, लाइक उसके लिए भी आर्ट भी चाहिए और देखो मैथ्स भी चाहिए एक तरीके से देखा जाए. बट वो ब्रेन हमारा पहले से ही मैथ्स कर देता है, इसलिए हमें नहीं चाहिए फिर वैसे सोच. तो फिर वही चीज है. हाँ, दैट इज कंटिन्यू. ट्रू. वो मैंने अभी रिसेंटली भी एक्सपीरियंस किया था, व्हाट यू आर सेइंग कि एवरीथिंग रिक्वायर्स you having fun while you do it. एंड इसमें अब जैसे मैं भी मंडालास काफी टाइम से बना रही हूँ अब, तो मेरे को जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं कस्टमाइज, तो व्हाट हैपेंस इज आई लव मेकिंग मंडालास, बट व्हेन आई एम मेकिंग समथिंग दैट is something not entirely a figment of my imagination, or like is not completely what I want to make, और मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बनाने लग जा रही हूँ, बिकॉज सो पीपल गिव मी अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कि हमको हमारे मंडाला में ये चीजें चाहिए, आपको इनकॉर्पोरेट करना है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी. एंड सम पीपल जिनको कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चाहिए होता है तो वो वैसे बताते हैं. अदरवाइज people do give me the freedom to exercise my creativity, but sometimes it's not enough, कि मैं फिर भी बना तो कुछ वही रही जो सामने वाले को चाहिए. एंड अभी एक बहुत ऐसा मेरे साथ हुआ था रिसेंटली कि अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम वेंट एंड आई डिड नॉट मेक एनीथिंग दैट आई रियली वांटेड टू, जो एंटायरली सिर्फ मेरे क्रिएटिविटी के यूजेज से बना हो, मेरे दिमाग का प्रोडक्ट हो वो एंटायरली सिर्फ. समझ रहा. तो
Abhi, you saw that diary I just made with Yeah. the whole trippy aliens and Yeah, yeah, everything, yeah. and also mandala around it and everything. Hmm. So that was after the longest time, someone, the person who ordered that diary told me, ki, you know what, you can go crazy, you can make whatever you want with this. I just want a nice diary cover, baki tere upar hai. हाँ. So I was so happy for that opportunity कि oh my god, अब काम भी हो रहा है और साथ में खुद का करने को मिल रहा है. तो Hmm. and then वो बनाते बनाते ना, every step of the way, especially when I was making all that trippy portion with all of those multicolored ऐसे galaxy and universe वाला वो सब portion, I enjoyed it so much. With every pen stroke, when I would see the color flowing out of the nib, it was like, or it was an orgasmic experience for me. I'm not even kidding. I was enjoying it so much, and I Okay. Okay. I couldn't wait to like I couldn't wait to finish the whole thing and show it to everyone and be like, "देखो क्या बना है इतने time बाद," and it made me so happy. So I saw the difference in the level of satisfaction, happiness, fulfillment, and everything that it brings you when you're doing something which is something you just you want to do, which is like completely about you and about your creativity, imagination, and blah blah blah, as compared to something that someone else wants you to do. So समझ yeah. रहा. आई थिंक सो. मतलब मैं मंडाला से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ. आई एम कमिंग टू ऐसे द होल पिक्चर कॉल्ड लाइफ. एक चैप्टर है हमारे हमारे सब में, एक लाइफ वाला चैप्टर जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स. तो मतलब आज ही मैं ये चीज़ सोच रहा था कि हम लोगों को ना एक बेस दिया था. ओके, जिसने भी दिया था, ओके, जिसने भी हमें ऐसे यहाँ पे उतारा. आई बिलीव इन गॉड. तो मुझे नहीं पता और सब लोग बिलीव करते हैं नहीं. तो देयर इज अ गॉड जिसने हम लोगों को ऐसे धरती पे भेजा. उन्होंने बोला ओके नाउ एक्सप्लोर. ओके, एंड हम लोग के पास उनने पहले से ही थोड़े ऐसे एट्रीब्यूट्स दिए थे. मतलब खाना पीना, ओके, ट्रीज, एनिमल्स, उन्होंने वो सब दिया था. एवरीथिंग एल्स जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है या हमारे पास हम लोग कोई आर्ट भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब के पीछे एक ह्यूमन माइंड का एक क्रिएटिवनेस है ना. मतलब आज किसी के पास मोबाइल है, ओके, वो मोबाइल भी किसी की क्रिएटिविटी है एक तरीके से देखा जाए तो. True, very true. है ना. आज भाई मेरे पास ये जो पोस्टर्स है, ओके, ये किसी और की आर्ट है. आई डू एग्री दैट, बट ये भी आई लाइक दिस एंड बट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ समवन एल्स. ओके, और तू सोच हम लोगों के माइंड ऐसे कनेक्ट हो रहा है फिर धीरे धीरे धीरे. तू सोच तूने ले. बहुत ट्रिप ले लिया है. This is फिर overthinker. This is overthinking वाला स्वप्निल. But dude, that's the thing. Okay, हम लोगों के लिए ऐसे कुछ दिया था. Okay, this was what God gave us. Okay, right now we are like here. Okay, थोड़े सालों में यहाँ फिर तो ये फिर रूम भी भर जाएगा, मेरे हाथ भी टूट जाएंगे. उतना भी हम लोग नहीं एक्सपैंड, मतलब उतना भी मैं बता नहीं पाऊंगा वाला चीज. I understand where you're getting at. Yeah. Yeah, I get this. I get it. हाँ, तो एक मतलब देयर आर लाइक फ्यू पॉइंट्स टू टेक इन जो मैंने बोला. एक ये कि हम सब लोग कनेक्टेड है. दूसरा कि भाई अभी हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं एज ह्यूमंस कि हमें पता भी नहीं है. क्योंकि आज तो देख हम दोनों बात कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्जेशन हो रहा है. ओके, अब वो कॉन्वर्जेशन हम दोनों के माइंड में तो कुछ ऐसे इवॉल्व कर रहा है, लाइक कुछ तो हो रहा है. एंड उसके ऊपर से फिर दूसरे जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी आज लगेगा ओ चलो अब तो मैं भी मंडाला करेगा. ओके, एंड फिर उनके दिमाग में कुछ इवॉल्व होगा और उनमें से मे बी एक जन बोलेगा और फिर वो नेक्स्ट आर्टिस्ट बन जाएगा. तू वैसे सोच. तू I सोचिए. understand. मैं समझी. तू ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन माइंड जो है वो बेसिकली एक दूसरे से इतने मल्टीपल वेज में कनेक्टेड है जो हमको दिखते भी नहीं होंगे कई बार, बट दैट कनेक्शन लाइज and you can see the impact of what one human does on the other human Yes. if you have the eye to like look for it and like observe and see. So वही yeah, वही. I know what you're saying. और वो तेरी लाइफ थी. ओके, एंड यू आर नॉट समवन विच हु इज लाइक ऐसे 10 मिलियन लोग तेरे को जानते हैं. ओके, बट अभी जितने भी लोग जानते हैं यू आर प्लेइंग अ पार्ट इन दैट. ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी पार्ट. आई डोंट नो, ऑफ कोर्स यू आर.
तो तू ऐसे सोच, अगर हम लोग ऐसे छोटे छोटे लोग भी ऐसे छोटी छोटी चीजें भी करना स्टार्ट करें, इट प्लेज अ वेरी बिग इम्पैक्ट, और हमें नहीं दिखता वो चीज. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. मतलब ये मेरे को क्या बोलते हैं, जो चीज तू बोल रहा है ना, ये मेरे को तब रियलाइज हुई जब ये होगी पिछले साल की बात. ओके. लॉकडाउन चल रहा था, ऑब्वियसली सब अपने घर पे बैठ के कर रहे थे जो करना था. आई वाज आल्सो सिटिंग एट होम एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. ये मेरे लिए हार्ड था काफी, बिकॉज मेरे को बहुत, मेरी एंजाइटी बहुत पीक पे चली जाती थी कई बार. ओके. एंड साथ में आई ऑल्सो हैड टू वर्क एंड इट यूज्ड टू बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हें मेंटल ब्लॉक, सारे आर्ट ब्लॉक आ रहा है और एंजाइटी हो रही है, साथ में तुमको खुद को इमोशनली संभालना है, और जब तक तुम एक सर्टेन जोन में नहीं हो, तुमसे आर्ट नहीं ओके. ते तू तू अब वो हाँ. चीज ओके. ऐसी भी थी जिसको, सॉरी. तू सॉरी अटक यार, गई थी व्हाट एक वर यू सेकंड के सेइंग. लिए, एक सेकंड के लिए अटक गई थी. कंटिन्यू कंटिन्यू. अच्छा अच्छा, ओके. हाँ. सो ये सब जब चल रहा था, इस बीच में मैं भी थोड़ा बहुत जो भी काम कर रही थी, आई वुड कीप पोस्टिंग इट ऑन माय स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, ताकि जो भी है लोग देख पाए कि कुछ तो चल रहा है. एंड आई हैव बीन टोल्ड कि लोगों को ऐसे वीडियोस देखने में मजा आता है, यू नो, पीपल मेकिंग मंडालास, बिकॉज दे वेरी सूदिंग टू द माइंड एंड ऑल. तो ओके. मैं वो करती रहती थी. So there हाँ. was this girl. I live in Baroda, and there is this girl little girl somewhere who studies in school. She lives in Kutch, ओके. and I've never even been to Kutch. Okay, हम्म. and this little girl tells me how I inspire her to this unimaginable extent in her head, and she wants to draw stuff, and she wants to come and meet me, and she's like, please let's meet one day. And she sent me her work and she's like, Didi, देखो मैंने ये बनाया है. And I was like, oh my god, I was that little school girl who would fangirl when I would see other artists doing stuff. And I'm not even that big yet. I mean, people don't know me इतना ज्यादा. थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो फॉलोइंग है अपना रेगुलर नॉर्मल लोग जैसा वैसा है. हाँ. हाँ. और वो बच्ची ने जब मेरे को इतना सब बोला ना, एंड हाउ आई सॉ दैट शी वाज सो एक्साइटेड, शी सेंट मी वॉइस नोट्स एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज सो हैप्पी इन दैट मोमेंट कि मेरे को लगा कि ठीक है, अपन जो भी कर रहे हैं ना, अपन सही कर रहे हैं, बिकॉज अपन ने किसी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी किया है लाइफ में, ट्रू. जिसको हम जानते नहीं है, जो हमको भी नहीं जानता है, बट दे जस्ट फील दे नो यू बिकॉज that one thing that you're exhibiting about yourself, for in my case that's my art, that helps me connect to people, and they are finding, you know, parts that they relate to so well in whatever I'm doing, that they want to come back and like talk to me and connect to me and tell me that there is this relationship that exists that nobody even knew of until now. समझ रहा हूँ मैं. Yeah. So बहुत डीप बातें कर ली मेरे को लग रहा है अब हमने. so yeah. Let's come back to mandalas. So सबसे पहले तो dude, this is a thing which मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को वैसे पहली बात तो पता भी होगा, like people like हमारी जनरेशन में से, क्योंकि हम लोग इतना नहीं यू नो इतने आर्ट से हम लोग ऐसे वाकिफ नहीं है वाला चीज. सो तूने अपने सबसे, और अगर हमारी जनरेशन को नहीं पता है तो हमारे ऊपर वाले जनरेशन तो बोलते होंगे ये क्या है. ओके. सो हाउ डिड यू कन्विंस योर मॉम डैड सबसे पहले कि आई एम डूइंग दिस, आई कैन अर्न फ्रॉम दिस एंड आई एम गोना गेट अ लिविंग फ्रॉम दिस? कैसे बोला तूने? तो देख, अब इसमें क्या था कि मैंने जब बनाना चालू किया तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आई वुड कीप मेकिंग. एंड उन्होंने देखा कि बनाती है, पहले उन्हें लगा सिर्फ शौक से कर रही है तो करने दो एंड एवरीथिंग. फिर उन्होंने देखा कि नहीं, अब अच्छा कर रही है, इम्प्रूव कर रही है. फिर उन्होंने देखा कि ये चीज को इससे लोग खरीदने को रेडी है और इसको पे करने को लोग रेडी हैं. फिर उन्होंने देखा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा था ऐसे, बिकॉज आई हैड कॉलेज एंड साथ में आर्ट भी एंड साथ में लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ. तो तब मेरा कंप्लीट एंटायर फोकस उस चीज पे नहीं था, बट फिर भी जितना मैं बनाती थी उतने में आई वुड गिव माय बेस्ट. ओके. तो जब वो देखते रहे कि वो प्रोसेस में, व्हेन दे सॉ मी growing and evolving as a person and my art also, you know, improving with each passing piece of art, so then they realized कि नहीं, ये मस्ती तो नहीं कर रही है, कुछ there is meaning to this. उनको मैंने समझाया धीरे धीरे. अब मेरी मॉम को भी जैसे पता नहीं था पहले कि मंडालास क्या होता है और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, and how
एक the sight of a mandala and the whole process of making a mandala can affect you in ways जो तुमको दिखेंगे ही नहीं, वो tangible ways नहीं है, क्योंकि वो तुमको mentally अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है जो तुम जानते भी नहीं हो रहा है, and it will result into something really good and really positive in, you know, in the future, जो बाद में तुम्हें दिखेगा, and then you will later connect the dots कि ओ ये तो इसलिए हुआ. Okay. So it was like that. So when I started making art and I started selling it to people, one thing I would do is I would give them a handwritten note that would say what the artwork is about, what mandalas are about, and why this is specially made for, you know, you, and how I hope like this brings you luck and, you know, a higher level of consciousness and stuff like that. So when my mother read that note, and this one time she also saw another one of my sessions online, you know, Instagram live sessions with somebody, then that's when she realized कि नहीं, ये जो कुछ काम कर रही है उसमें कुछ meaning भी है, क्योंकि अदरवाइज मैं बताने बैठूंगी तो लोग सुनेंगे भी नहीं, भाव नहीं देंगे कि हाँ ठीक है बकवास कर रही है कुछ. बट देन शी सॉ कि नहीं कुछ है. एंड नाउ अब क्या होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग टिल यू एक्सपीरियंस इट. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर बहुत एंजाइटी होती थी पहले, मेरे घर वालों को नहीं समझ आता था क्योंकि उन्हें एंजाइटी नहीं हो रही. उनको तो हो रही, अब बट जब उनको मेरी पता नहीं है कि एंजाइटी क्या है. टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है. a lot of times that is the case. बट इन लोग के केस में ये लोग क्या चिल चल रहे थे अभी तक. अब इनको धीरे धीरे जब घर वालों में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे, उनको एंजाइटी होने लगी एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन आई टोल्ड देम आई कैन हेल्प बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग. तो एक अलग डायमेंशन ऑफ कन्वर्सेशन ओपन हो रहा है. और उसमें फिर मैं उन्हें मंडालास के बारे में भी आई वुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू टेल देम अबाउट मंडालास की, यू नो व्हाट, सी दिस कैन हेल्प यू, you know. So for example, I taught my dad how to meditate, and I was just telling him abhi in the afternoon when he came for the weekend to visit us ki, you know what, mandalas are a really good tool for you to help you meditate and grow mentally out of this whole bubble of anxiety that we have created for ourselves, that we are living in. क्योंकि ये चीज उनको पता ही नहीं है, इन लोगों को ये सब कैसे पता होगा. ये लोग वो बहुत सिंपल लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थे वो जनरेशन में, जो सिर्फ उठेंगे, काम के बारे में सोचेंगे, काम करने चले जाएंगे, काम करके घर आ जाएंगे, घर आके थोड़ा टीवी देखेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे. that is their life. That is still my dad's life. So ये देखते देखते उनको फिर लगा कि नहीं कर लेगी ये, एंड फिर अब धीरे धीरे आई स्टार्टेड अर्निंग मोर एंड मोर आउट ऑफ इट, एंड काम का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता गया. तो उनको देख के अब मेरी मॉम मेरे को मेरा हर आर्ट पीस देख के बोलती है ये रख ले मत दे. तो that was वैलिडेशन फॉर मी, ट्रू वैलिडेशन कि हाँ अब इनको दिख रहा है इसमें वैल्यू, कि अब अगर मैं कुछ बेचती हूँ और उन्हें लगता है कि मैं कम में जाने दे रही हूँ अपना आर्ट पीस, तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, दिस इज वर्थ अ लॉट मोर. There are a lot of times, there was this huge art piece that I was selling for 5,000-6,000 and they're like, dude, to ऐसे 10,000 का काम 5,000 में क्यों दे रही है. So I saw that they were also seeing value in what I was doing, खुद ही अपने आप eventually जब उन्होंने मेरे को काम करते देखा, because मेरे को पता था my words are not going to work here, only my actions will convince them. So that is what I basically did over a period of time. Okay. यहाँ पे दो चीज़ें आती है. एक कि यूजुअली मंडाला आर्टिस्ट कितना लेते हैं पूरे प्रोसेस के लिए, एक आर्ट पीस के लिए. और दूसरा चीज़, दिस इज ऑफ टॉपिक मंडाला, बट डूड एंजाइटी के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, मतलब एक तरीके से. बट आई डू वांट टू टॉक अबाउट एंजाइटी, क्योंकि लोग इसलिए नहीं बात करते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. सो तेरे को किस पे पहले बात करना है ये बता पहले तू. एंजाइटी इज अ वेरी बिग टॉपिक. बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों मेरे लिए बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. तो तू बता दे किस पे पहले बात करें. पहले वाला करते हैं और फिर एंजाइटी बाद में करते हैं. एंजाइटी इज अ बिग टॉपिक. it's a long one. तो okay, so mandalas के लिए that depends a lot on the artist and the kind of work they are doing. I've noticed कि वो तुमसे कितना चार्ज करेंगे depends on उनके काम में कितना डिटेल है, वो कौन से आर्ट सप्लाईज यूज कर रहे हैं, वो मतलब वो कितना घंटे बैठ रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं उस आर्ट वर्क में जो तुमको बना के दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें तो मैं खुद भी कंसिडरेशन में लेती हूँ. अब मुझे याद है कि ये
2019 की बात है, बिफोर कोरोना एंड एवरीथिंग, कि मैंने एक ये वाला जो साइज है ना, ये जो अभी तूने देखा, यही साइज का मैंने एक आर्ट पीस बनाया था, ऐसा ही मंडाला. एंड ये मैंने again I had done it in brown and golden, brown sheet पे golden pen से I had done it, and I was selling it for about $1,000. और वो जा रहा था आराम से, and that was like without framing and stuff like that. So ये चीज जब मैंने वो बंदे को दिखाई जिसने इन द बिगिनिंग मुझे बोला था, जो जो बहुत अच्छे मंडालास बनाता था, कि भाई तेको भी बनाना चाहिए, वो बंदे ने ये सेम चीज देख के मेरे को बोली, तू पागल है, तू इसको आराम से, यू शुड लाइक चार्ज एटलीस्ट 3,000 फॉर दिस स्टफ. एंड आई रियलाइज्ड कि वो बंदा खुद अपना काम उतने में एक्चुअली बेच रहा है. सो आई रियलाइज्ड कि नॉर्मल मंडाला आर्टिस्ट से एक तो मेरा काम तो अलग है ही, मैं तुमको कुछ ऐसा बना के दूंगी जो तुम्हें लोग बाकी नहीं बना के दे रहे हैं. Like I am that person who has been doing her best to incorporate anything and everything in my mandalas. I recently made dinosaurs, if you saw, in one of my mandalas. Yeah, so मैं वो तो करने की कोशिश कर ही रही हूँ. Plus I realized I'm selling my work at much cheaper rates than other people at this point, at least, because मैं कॉलेज में थी और मुझे पता था क्या स्ट्रगल होता है कि तुमको कुछ अच्छा सेव अप करके बाय करना है, स्पेशली अगर आर्ट किसी का बाय करना है, और तुम्हारे पास एक बजट होता है, हर कोई हर चीज नहीं बाय कर सकता है. तो इसलिए a lot of stuff that I make is like pretty affordable for people now. वो 500 के रेंज से चालू होगा, 1,000 तक में हो जाएगा. And for bigger art pieces, then I charge because उसमें time बहुत लगता है. I think the work I recently again sold a piece of art for like 6,000, but अब मैंने बाकी लोगों को जाके पूछा जो लोग एक्चुअली आर्ट समझते हैं, और उन लोग को मैंने पूछा कि तुम इसका कितना पे करते अगर तुम इसको ले रहे होते. तो उन लोग ने बोला, डूड हम इसका 8-10 हजार से कम तो नहीं करते. तो आई रियलाइज कि उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्पेशली जितना ज्यादा लोग आर्ट को समझ रहे हैं, जितना वो लोग एटलीस्ट जिनको एक्सपोजर है, जिनको पता चल रहा है कि कितना काम जाता है, they are willing to pay that price for it, which the artist actually deserves. But because I understand कि I am just an upcoming artist right now and I cannot charge that fancy, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ. धीरे धीरे eventually जैसे जैसे मेरा नाम establish होगा as as that artist whom everyone wants to go to, वैसे वैसे धीरे धीरे मैं अपनी prices increase करूंगी, ऐसा मैंने भी सोचा है. Is it? But वही है, at the end of the day सही प्राइस देना is the worth. मतलब people don't understand, okay? Like people understand कि drawing ही तो है. I'm like, bro, drawing तो नहीं है. तेरे को अगर तेरे को aesthetics के लिए लगा रहा है, मतलब there's something you find as a good in it. तो you buying, मतलब see it like this कि मैं जैसे हमारी बात हो रही थी किसी की creativity में ले रहा हूँ, तो it's a part of the brain जो कहीं से आया है, okay, and you're putting it on a paper. मतलब I'm saying it in like very simple terms. ऐसा होता नहीं है. You're literally buying someone's peace of mind. A tiny piece of someone's mind, their imagination, a tiny piece of someone's creativity. So yeah. But लोगों को समझ नहीं आता ये चीज. लोगों को लगता है भाई ड्राइंग तो करती है. I'm like, okay, तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो. I completely understand what you're saying. I got a call from someone in Chennai yesterday. Okay. And this person wanted to buy art from me. Really nice girl and everything. And I don't know how she found out about me because मेरे को इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, और अगर मैं गुजरात में बैठी हूँ और किसी को चेन्नई में पता चल रहा है तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था. अभी मिलेगा इसके बाद, ये पॉडकास्ट के बाद और बड़ी सुपरस्टार में बता रहा है. आई होप सो. तो क्या हुआ अब कि she said कि she was on a budget and she wanted art, और जो चीज अब जैसे approximately imagine कर 14 by 14 inches का piece of art मैं 2,500 में 2.5K में जाने देती हूँ. एंड वो अच्छे से जाता है, मेरे को कभी उतने में सेल करने में उसको प्रॉब्लम नहीं हुई. पीपल वर एक्चुअली विलिंग टू पे मी मोर. नाउ दिस पर्सन वांटेड मी टू गिव हर 25 by 25 inches for 2.5K. And I said, please ऐसा मत करो मेरे साथ, because
so she was doing her UG and I understood कि उसको save करने में problem हो रहा था and everything. She explained her situation to me and I know everyone deserves to have good piece, good art. तो वो मैं adjust करती हूँ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है. But फिर एक तो आर्ट सप्लाईज बहुत महंगे हो गए. अगर तुम वाटर प्रूफ और फेड प्रूफ आर्ट सप्लाई यूज करोगे, माइक्रॉन्स एक पेन मेरे को 100 रुपए का मिलता है डूड. एंड एंड देन उसके ऊपर से आई वर्क ऑल दोस आवर्स. अगर मुझे उतना बड़ा कुछ बनाना है, इट्स गोइंग टू टेक अ मंथ्स टाइम, एटलीस्ट 20 days minimum, and I sit like for 6 to 7 hours a day at a stretch sometimes. So that is a lot of work. Plus वो तो ठीक है, ये तो आजकल बहुत आर्टिस्ट जो भी है सब तुमको इतना मेहनत तो अपने काम में अपने फील्ड में करके दे ही रहे. बट ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दैट आई मेक श्योर ऑफ इज कि मेरे कोई भी 2 आर्ट पीसेस एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं, ताकि हर इंसान जो आर्ट ऑर्डर कर रहा है उसको कुछ बहुत एंटायरली यूनिक मिल रहा है. एंड मतलब बिकॉज होना चाहिए, तुम स्पेशल हो और मेरा काम स्पेशल है, तो तुम्हारे पास कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास उतनी मेंटल कैपेसिटी है कि मैं हर डिजाइन के साथ कुछ नया कर सकूं, तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगी उसमें. प्लस ये सिर्फ ये नहीं है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा रिसर्च गया है. तो मैंने हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके हर जगह जहाँ पे भी पॉसिबली मंडालास दिख सकते हैं लोगों के बनाए हुए और लोगों का बेस्ट काम जहाँ दिख सकता है, वहां जाके देखा है कि लोग अभी ऑलरेडी क्या बना रहे हैं और मुझे ऐसा क्या बनाना है ताकि मेरा काम उनसे अलग हो और एट द सेम टाइम एस्थेटिकली अपीलिंग भी हो. एंड दैट इज नॉट इजी, बिकॉज किसी का काम देख के उसके जैसा बना लेना इज अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक इजियर, टन्स ऑफ टाइम्स इजियर देन मेकिंग समथिंग जो एंटायरली डिफरेंट हो किसी और के काम से. समझ रहा मैं. एंड मंडालास इज द काइंड ऑफ थिंग जिसमें डिजाइन इजीली किसी का बोरो करके रिपीट कर देना इज वेरी इजी. मतलब कुछ देखा तुमने, उठाया, तुमको अच्छा लगा, तुमने वही डिजाइन अपने में भी बना दिया, पर क्योंकि बाकी लेयर्स अलग है तो सामने वाला बोल भी नहीं सकता कि तुमने उसका कॉपी किया है, क्योंकि तुमने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर दिया बट बाकी चीजें सेम उठा ली हैं. तो ये सब बहुत होता है. अब उसमें भी तुमको इतना रिसर्च करके, इतना स्ट्रगल करके कुछ ऐसा बनाना है जो कोई और तुम्हें बना के नहीं देगा. तो वो चीज का वैल्यू है, वो चीज का सिर्फ जो आर्ट सप्लाईज महंगी जा रही है उसका नहीं, जो दिमाग इतना सारा जा रहा है एक इंसान का, जो सिर्फ वो तुम्हारे लिए वो मोमेंट में उसने चलाया तुम्हें कुछ अलग सा बना के देने के लिए, वो मेंटल एनर्जी तुम्हारे पास नहीं थी, तभी तो तुम उसके पास जा रहे हो वो चीज उससे लेने, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज करता है. तुम्हारा मेंटल एनर्जी कहीं और लगता होगा तुम्हारे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में. बट अगर तुम अपने जॉब में चार्ज करते हो और तुमको नहीं चाहिए कि तुम्हें अच्छा लगेगा क्या तुम्हारे सैलरी पे तुम्हारा बॉस बोले चल डिस्काउंट इस बार, मतलब मैं तेरे को थोड़ा कम पे करेगा तो तुम अपने सैलरी में डिस्काउंट नहीं सुन सकते, तो तुम किसी को आर्ट के लिए पे करने से पहले कैसे उससे डिस्काउंट मांग लेते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए. समझ रहा. हाँ, अनलेस ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा है कि कुछ बहुत अनरीजनेबल चार्ज करे सामने वाला. आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट होगा, और इंडियंस का तो बहुत टेंडेंसी होती है बार्गेन करने की. But you have to understand the value of something when you're buying it, because if it did not have value, you wouldn't have been buying it. True. वही चीज. बट वही है, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ना इसलिए ही वो आर्ट का एक तो सबसे पहले मतलब समझ पता होना चाहिए, सेकंड उसको कितना टाइम लगता है लाइक पूरा टोटल करने में वो समझ आना चाहिए, फिर उस आर्ट पीस का ऐसे वैल्यू भी समझ आना चाहिए कि डूड ओ भाई उसमें ये चीज की हुई है. इट्स नॉट जस्ट अ लाइन, इट्स वो लाइन बनाने में भी भाई. ओके सो मैंने डिजिटल पैड लिया था, और जो लोग डिजिटल आर्ट लाइक डिजिटल बनाते हैं उन लोग, आई वाज ट्राइंग ओके टू मेक 10 ऐसे स्ट्रेट लाइंस. आई कुडंट. मतलब मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल इट वाज लाइक सो टफ, और लोगों को वो चीज समझ नहीं आता. और वही चीज कि आज मैंने जो 5 घंटे की मैं चीज बनाई है उसके पीछे मेरी 20 साल की मेहनत है. मतलब नॉट 20 साल, मतलब 10 साल या 5 साल की मेहनत है. मेरे को वो सब चीजें मैंने सीखी है, वो सब मैंने ग्रास्प किया है. पुराने मेरे सब कुछ है, क्योंकि आज कोई इंजीनियर बना है तो उसने 10th-12th में कुछ पढ़ा है, ओके मैथ्स पढ़ी है, उसके कारण उसने कुछ ग्रास्प किया है. मतलब मैं सबसे इजीली यही समझा सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग इंजीनियर्स ही हैं, ओके, एंड दैट्स अ फैक्ट, नॉट गोना लाई, इट्स अ फैक्ट. तो मैथ्स पढ़ी 10th-12th में, फिर तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े कॉलेज में, और उसके बाद फिर तुमने और भी चीजें पढ़ी है जो तुम्हें
तुमने कंपनी ने तुम्हें सिखाई है या कॉलेज जो भी है, बहुत सारी चीजें लोगों ने सिखाई होगी, और उसके बाद तुम वो सेट ऑफ कोड लिख सकते हो, इसलिए यू आर पेड सो मच। वही चीज लोगों को आर्ट में समझनी चाहिए कि एक सिंपल लाइन बनाने में भी टेक्स टाइम। ओके, स्ट्रेट लाइन बनाने में इट्स नॉट जस्ट कि हाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी, पेशेंस भी कितना लग रहा है, टाइम भी कितना लग रहा है, एंड इट्स जस्ट नॉट द 5 hours पुट इन जो तूने 8 पे दिया है, बट इट्स द 10 साल की मेहनत जो तूने अपने पे पहले की है, तो उसका भी चार्ज लेना चाहिए, आई थिंक सो। That is definitely true. That is definitely. मतलब वो पता है ना, लाइक प्लस 18% जीएसटी लगाते हैं उसके साथ निकालना चाहिए प्लस 5 साल की मेहनत। मेहनत का टैक्स। हाँ होना चाहिए मेरे को, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मैंने जो 10 साल की मेहनत की उसका पैसा तो दो मेरे को, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ना 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 ना, ना ना। तो उससे फिर हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब पे, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बी गोइंग थ्रू दिस, और दिस इज लाइक अ, मतलब ये चीज एक्चुअली हॉट टॉपिक बन, मेरी आवाज रिपीट हुई, सॉरी। हाँ, दिस इज एक्चुअली अ हॉट टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट कोई भी एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा कि लाइक बड़े लोगों में ही नहीं होता, हम जैसे लोगों में भी होता है ये चीज। लाइक हम जैसे मिडिल क्लास पीपल ट्राइंग टू अर्न लाइक स्मॉल स्मॉल स्टफ, इतना हम लोग ऐसे करोड़ों में नहीं अरे कमा रहे हैं। there is no exception to this. किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी हो वही, जाता है, तो basically there's सबको no exception. हाँ. तो बट अब सब लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे डील करना चाहिए, और आई थिंक यू हैव डेल्ट वेरी वेरी फर्मली, वेरी स्ट्रांगली, तो आप अपनी अगर आप स्टोरी से हमें कुछ सिखा पाए आज, तो वी विल बी ग्लैड। Okay. So, dude, I mean, if I recall, तो अभी तो मैं काफी आई थिंक हद तक लोगों के हेल्प से, थेरेपी से एंड एवरीथिंग, उससे लोग मैं डील कर लेती हूँ फिर भी चीजों को। एक पॉइंट था बैक इन 2018 जब आई वाज डायग्नोज्ड विद एवरीथिंग। देयर वाज एंजाइटी, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, देयर वाज डिप्रेशन, मेजरली डिप्रेशन था, एंड साथ में देयर पैरानॉइड टेंडेंसीज। तो पैरानॉया मेरा बहुत एक्सेसिव, मतलब ऐसे इतने रैशनल लेवल पे चला गया था कि सो फॉर एग्जांपल यू सी दिस एयर कंडीशनर ऊपर, earlier my bed used to be under this, and on this in this part of the room. So जब मैं सो रही होती थी नीचे, मेरा पैरानोया इतना ज्यादा वो हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा था कि I would feel this AC is going to fall on me and it's going to like hurt me, injure me, kill me, I don't know. And वो लेवल ऑफ पैरानोया था जो सिर्फ मेरे को लेके नहीं होगा, सामने वालों को भी लेके होगा, फॉर माई लव्ड वंस। फॉर एग्जाम्पल, I have this relative, this old relative who had, the right side of his body was paralyzed, and he had a problem in walking. So whenever I would see him getting down the stairs on his own, it would give me unusual levels of anxiety, and I would leave everything that I'm doing and I would just go and help him get down the stairs, and hold somebody's hand so that he doesn't trip, because the idea of him going down that fleet of stairs alone would like scare the shit out of me. So एक second, I'm confused. So is that a problem? क्योंकि ये तो मेरे साथ भी होता, but I thought this was more of like caring. you care, obviously you care, but you मतलब this is caring, but उसका जब तुम्हारा दिमाग किसी एक एक्शन का एक बहुत ही इरैशनल और एक्सेसिवली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इमेजिन कर ले रहा है, जो शायद प्रोबेबली होगा भी नहीं और एक बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, पर तुम्हारे दिमाग को वो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी जब लगने लग जाए, वो नेगेटिव, वही पॉसिबिलिटी जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज और डेंजर है, तब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ऊपर, डूड, तब कुछ हो रहा है गलत। चेक करवाना पड़ेगा मेरे को। 10 किलो मजाक कर रहा है। ओके, सो ये सब, और दिस वाज नो जोक डूड, लग गई थी। मतलब तुम कैसे डील करते हो ये सब चीजों के साथ साथ में, मुझे नहीं पता।
एंड ऑब्वियसली कैसे किसी को सिखा के तो बेचता नहीं है ये काम की चीजें जो एक्चुअली जो पता होनी स्कूल में चाहिए हम बतानी लोगों चाहिए। को। हाँ, ये तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं लाइफ में। जो थोड़ा बहुत 11th-12th में मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, उन्होंने तो बस थ्योरी पढ़ा के मेरे को छोड़ दिया। ये तो बताया नहीं कि तुमको खुद को एंजाइटी, पैरानोया, डिप्रेशन साथ में हो तो तुमको क्या करने का। तो when all of this started happening, now all of this was like cherry on the top was suicidal thoughts, not tendencies, thoughts. So I was always like rational enough to never act on them, which is why nothing went wrong. I was never that person. It was against my own. I think the only reason I never harmed myself physically on any level in any way was because मेरे को लगता था that would make me a hypocrite, because I believe कि कभी किसी human being को harm नहीं करना चाहिए, और मैं खुद भी एक human being हूँ और मैंने खुद को अगर harm करा किसी भी sense में तो मैं एक hypocrite हो जाऊँ। Okay. So that part of me saved me from myself, thankfully. And ये काफी time तक चला, and I tried to talk to a lot of people. There was this therapist, this counselor that I had who recommended me to a therapist. And उसके बाद चीजें सॉल्व होना चालू हुई जब मैंने खुद पे काम किया, और वो जो 1 साल गया ना उसके बाद, that intense amount of work that I had to put in with every thought I got. So the moment I would get an anxious thought जिसका basis मुझे दिख रहा है कि मेरे low self esteem में है, I would take a moment to stop that thought and reason with myself वही mentally उसी moment में, भले ही 10 चीजें आजू बाजू मेरे चल रही हूँ उस टाइम, and I would tell myself, no, this is irrational, this is not you, and this line of thought is not going to help you, it's not going to take you anywhere. It's okay that you are having this problem, but we are going to rise above it. Now obviously this doesn't help everyone, but मैंने फिर ये भी देखा है कि मेरे लिए टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड रीजनिंग विद माई सेल्फ वर्कड मैजिकली, बिकॉज मेरे को लगता है कि लोग ये चीज का जो वैल्यू है वो नहीं समझते हैं। खुद से बात करना, उस चीज का वैल्यू लोग नहीं समझते हैं, उसका इम्पैक्ट जो तुम पे हो सकता है वो भी लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि हम लोग खुद को कितनी सारी चीजें कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं, और कई बार तो खुद को काफी लोग बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, मैंने एक्सपीरियंस ये किया था कि तुम खुद को एक इंसान समझते ही नहीं हो, तो तुम खुद को वो भाव ही नहीं देते जो तुम किसी और इंसान को दोगे। तुम उससे कोई बात करोगे, उसके ओपिनियन का वो मैटर करेगा तुम्हारे लिए या व्हाटएवर, सो यू वुड प्लेस weightage on something that they're saying or thinking, but you wouldn't do that for yourself because you have low self-esteem, and that's just so entirely wrong. You're being so unfair to yourself. So after understanding more and more of me and how I thought and what was the root of every thought, where it was coming from, why was I getting anxious, and all of those things, going to therapy, all of that combined together helped me get out of it. And now even at this point when I get anxious, there are days when I'm not able to do anything about it. I just have to like sit with myself and sit with my thoughts and just be okay with the fact that I am having negative thoughts. But because I think you've experienced, everyone around, most people around me have experienced anxiety, and they get really bad anxiety attacks sometimes. Thankfully I got over those back in 18, उतना ज़्यादा उसके बाद से नहीं हुआ. But there are these really handicapping anxiety attacks that people get where you can't breathe properly, you can't talk, you can't do anything, you just you sink down wherever you are, you want to sit. And there was this one time I remember where I wanted to drink water, but my hands had lost strength and I couldn't pick up the bottle of water. I वो हाथ से गिर रही थी बार बार. So this happens to people, and I don't really know any surefire way of getting out of all of this stuff except for therapy. That is very, very, very important. Don't undermine the value of therapy. Costly होता है, I know, but अगर free therapy मिल जाए, because आजकल वो options available हैं, online भी available हैं, तुम्हारे आजू बाजू भी available मिलेंगे तुम्हें. तुम जाओ, तुम therapy please लो. सिर्फ लोगों से बात करने से तुम ठीक नहीं होगे, because लोग experts नहीं होते और वो तुम्हें नहीं समझ पाएंगे वैसे जैसे एक therapist समझेगा. एंड अगर एक पॉइंट आता है थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद भी, जब तुम्हारे ऊपर खुद ही काम करना है. अब ये सब जब इतना मेजर सीन हुआ बैक इन 18, तो व्हेन आई वेंट फॉर थेरेपी मेरे सिर्फ 4 सेशंस हुए.
And after those 4 sessions, he said, I think we are done now. You just have to do the work on yourself. And I Okay. said, मैं ठीक है, पर मैं कैसे, मतलब 4 सेशन में हो गया? Okay. हाँ, समझ So, आया. but then I understood कि वो मेरे को फिर क्या करने को बोला. And dude, मैं इतना खुद से डरने लग गई थी and थक गई थी वो state of mind में रह के, जहाँ पे मेजरली सब नेगेटिव है, बहुत ज्यादा एंजाइटी और पैरानोया है, कि मैं खुद डेस्परेट थी टू गेट आउट ऑफ इट एंड लाइक अचीव अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. तो इसलिए दैट इज व्हाट मोटिवेटेड मी टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन माई सेल्फ टायरलेसली एवरी डे. क्योंकि वो उस साल के बाद कोई मेजर मेरा प्रोग्रेस किसी ने काम में नहीं देखा होगा, बट मेंटली आई वाज एबल टू ग्रो in such a way कि now I not just understand myself more, but I also understand other people a lot better. I have more acceptance for people and things in life. And that has also in turn helped me with my art, because you need to have very wider horizons and a much wider and accepting imagination for you to be able to make something extraordinarily artistic that will make people wonder, wow, ki how did you do it. तो बेसिकली तुम तुम अगर गुजर रहे हो ऐसी किसी चीज से तो तुम गुजर जाओगे, बस जब हेल्प लेने की बात है तो हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं. Like go to that session and talk to yourself and help yourself and let other people help you and let your therapist help you. So yeah, do all of those things. I think, I think everyone, at least Indian society, may has been through some kind of mental thing. मतलब कुछ भी, क्योंकि there are a lot of things which we don't know. Okay, मतलब we have मतलब dude, Indian parents, सबसे पहले तो there's a problem कि Indian parents are like कि अरे सो जा सब ठीक हो जाएगा. Like the basic statement I've heard people saying to me कि सो जा सब ठीक हो जाएगा. I'm like, डूड तेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं तेरे को? लाइक सो जा, उससे कैसे ठीक हो जाएगा? लाइक सुबह उठ के वापस मेरे को वो चीज आने वाली है, क्योंकि है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, I've been through palpitations. मतलब there's a palpitation attack जैसे बोलते हैं, तो it's more majorly about कि I overthink and then that happens. But मतलब I realized कि ये चीज मेरे को नहीं पता थी. Okay, मतलब आई वाज लाइक कि ये क्या होता है, मतलब आई डिडंट इवन नो कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ओवरथिंकिंग क्या होती है पहली बात. क्योंकि शुरू से क्योंकि सिंस आई एम अ सिंगल चाइल्ड, ओके, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, ओके, बट उनको भी नहीं पता उसके बारे में. मतलब आफ्टर थिंग्स हैपेंड दे न्यू कि हाँ ये भी होता है कुछ. ओके, मतलब दे न्यू कि मेंटल प्रेशर होता है कुछ, क्योंकि माय डैड हैज बीन एन इंजीनियर, तो ही नोज कि हाँ मेंटल प्रेशर होता है. माय मॉम आल्सो अंडरस्टैंड्स मी सो वेल, सो दैट्स देयर. बट उन लोगों को प्रोफेशनल तो चीज नहीं पता, और ये हर एक इंडियन सोसाइटी की, लाइक हर एक पेरेंट के लिए है कि उनको नहीं पता इस चीज के बारे में. तो आई थिंक क्योंकि उन लोगों से मैंने बात करना स्टार्ट किया कि डूडी मतलब ये हो रहा है मेरे को, तो दे टुक मी टू अ डॉक्टर कि भाई ये हो रहा है. सो दैट डॉक्टर सजेस्टेड मी टू अ थेरेपिस्ट एंड ही इज लाइक, उन्होंने बोला ज्यादा कोई सीन नहीं है, तू बस ओवरथिंक कर रहा है और उसको हम लोग को कम करना है. तो मतलब यूजुअली मतलब वन ऑफ द वे जो मेरे लिए काम आया, विच वॉज राइटिंग थिंग्स डाउन, विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड टिल नाउ. लोग बोलते हैं लिखो लिखो लिखो, बट लोगों को पता नहीं कि उसकी अहमियत क्या है. इट्स लाइक कि तुम अपना एक ब्रेन का एक टास्क है ना, तुम ऐसे पेपर पे लिख रहे हो, और वो जब तुम लिख देते हो ना, उसके बाद वो सर से निकल जाता है. लोगों को समझ नहीं आता, वो एक्चुअली निकल जाता है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि तुम्हें पता है सुबह उठ के मेरे को एक डायरी देखनी है और उसमें जो लिखा होगा मैं कर दूंगा. मतलब दैट्स हाउ आई थिंक क्योंकि मेरे सुबह सुबह मैं अपनी डायरी खोलता हूँ, आई हैव दिस टास्क रिटन. एक बार रात को मैं बस लिख लेता हूँ आज मैंने क्या क्या मिस कर दिया, वो मिस किया हुआ चीज मैं वापस लिख देता हूँ, वो कल वापस कर लेता हूँ. और उसके यार थिंग्स हैव रिड्यूस्ड. मतलब वैसे तो 5-6 साल पहले की बात है ये चीज़, लाइक 12th की बात है सपोज. तो 12th में सीन थे, बट 12th वाज मेजरली बिकॉज बोर्ड्स वाला चीज़. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है इस चीज़ का क्या है, कि हम लोग अपना अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है. हम लोग बस ये सोचते रहते हैं कि आई वोंट परफॉर्म, कुछ भी हो जाए भाई, मैं कितना भी काम कर लूँ, आई वोंट परफॉर्म. जब मेरा ऐसे 9 पॉइंटर भी आ रहा होगा, आई विल बी थिंकिंग कि नहीं मेरा 6 पॉइंटर आएगा. Like that's how we think as human beings. और
The doctor said कि doctor, and I've been to Art of Living too, और दोनों में से I've heard this one same thing, which is कि हमारा mind सबसे पहले negative tendencies पे जाता है, क्योंकि हमारा True. mind है वैसा, okay, and we can't help through it जब तक हम लोग actually अपने mind को train नहीं करते. अब तू डॉग को सुसु पॉटी बाहर करवाना नहीं सिखाएगा तब तक वो वहीं करेगा, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया है. ओके, एंड सेम थिंग हैपेंस विद ह्यूमन माइंड्स टू. सुबह हम लोग, थोड़े लोग होते हैं जो रात भर जगते हैं, ओके, थोड़े लोग होते हैं जो सुबह ऐसे 4 बजे जग जाते हैं. दैट्स लाइक ट्रेनिंग, आई थिंक सो. मतलब हर चीज के लिए ट्रेनिंग. तो दैट्स द माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स कि थेरेपी जाके यू गेट दिस शॉर्ट फॉर्म्स, ओके, कि जहाँ से तुम्हें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करने को मिलता है, क्योंकि इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ओके, इट्स द ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम, और वो तुम्हारे अंदर वो थोड़ा सा ज्यादा है, और उसको बस वो सॉल्व करना है. दैट्स सो सिंपल थिंग, बट लोगों को नहीं समझ आता. लोगों को लगता है मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा. भाई कुछ नहीं करूंगा, जाओ सिंपल सा और हो जाएगा सब ठीक. मतलब थेरेपिस्ट के पास जाओ वाला चीज. सो आई डू एग्री विद द थेरेपिस्ट थिंग. मतलब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना था मेरे को, बट नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज जो अभी तूने बोला ना कि लोगों को नहीं समझ में आता कि लिखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैंने देखा है कि हम लोगों के साथ ये जो नई जनरेशन, मतलब जितनी भी आ रही है, हमसे आगे, हमसे थोड़े से जो पीछे वाले हैं, उन सबका ना एज कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की थी, हम लोग का ना दिमाग रीजनिंग में बाय डिफॉल्ट ज्यादा बिलीव करता है, और हमको रीजंस चाहिए होते हैं चीजों के लिए. हम लोग में क्यूरियोसिटी भी ज्यादा है. अगर मैं तेरे को खाली ये बोल के छोड़ दूंगी ना कि तू लिख ले भाई, लिखने से हेल्प होगा, दैट विल नॉट वर्क एज वेल एज अगर मैं तेरे को बोलूंगी कि यू नो you should start journaling, this is the way you should journal in, this is how it will help you put your thoughts out there in a very systematic way, and this will reduce your overthinking considerably to this level, and you should try experiment this for like 5 days and see how well it works for you. Now if you अब जैसे द सेम वे, अब मुझे लोग कितना बोले कि मेडिटेशन करो, ठीक है, मैं ऑनलाइन जाके लोगों को जिनको सुनती हूँ, जिनको मैं एडमायर करती हूँ, कितना लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, बट देयर इज दिस वन गाय जिसकी बात सुन के आई फेल्ट एब्सोल्युटली कन्विंस्ड अबाउट इट, बिकॉज he explained what happens to your brain when you meditate, and it's more important to know what happens, how it happens, because that is when you start seeing कि अच्छा अब इससे मेरे को क्या फायदा होगा अंदर. अब अगर तुम किसी को बस बता दो कि ये कर ले, तुम उसको दवाई तो दे दो उसकी बीमारी की, पर तुम उसको बताओ नहीं कि वो दवाई से उसकी बीमारी कैसे ठीक होने वाली है, तो वो दवाई को डाउट करेगा. तो एक तो अपने सबके साथ प्रॉब्लम ये है, प्लस मैंने ये भी नोटिस किया है कि हम लोग के जनरेशन के साथ ये जितनी भी सब नए जनरेशन आ रही हैं, सब में सेल्फ डाउट बहुत है, सब में लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज बहुत है, सबको कॉन्स्टेंटली सब लोग को जनरेशन्स के साथ साथ स्ट्रेस भी नॉर्मल, मतलब ये लाइफ में जहाँ बच्चों को खेलते कूदते चिल करना चाहिए, लोगों का स्ट्रेस बहुत बढ़ जा रहा है एट अ वेरी यंग एज. एंड काफी सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे मेरी भी इतनी सारी जो थी, उनका काफी हद तक जो रूट था वो ओवर थिंकिंग था, जैसा भी तूने तेरी प्रॉब्लम का मेंशन किया. और हम लोग को ये सब सिखाना बहुत जरूरी है एट अ वेरी अर्ली एज, ताकि हम आगे जो इतना सब फेस करने वाले हैं कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें. अगर तुम एक इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हो बचपन से कि वो 10 साल बाद जाके वो एग्जाम अच्छे से देके और उसे क्वालिफाई करे, तुम उसको 1 2 3 सिखा रहे हो, फिर 1+1 सिखा रहे हो, तो वैसे ही फ्रॉम स्क्रैच लोगों को सिखाओ कि उनका दिमाग कितना इम्पोर्टेंट है, उनका जैसे वो सोचते हैं वो तरीका सोचने का, मेंटल हेल्थ अपने इन आप को शॉर्ट वाला समझने चीज का ना. कितना, एग्जैक्टली सब कुछ उन्हें बताओ कि उन्हें, बिकॉज आई थिंक मेंटल हेल्थ तो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ही, अगर तुम्हें कोई मेंटल इलनेस है या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है बेसिकली जिसके साथ तुम्हें डील करना है, सिर्फ तुम तब उठ के चले जाओ एक थेरेपिस्ट के पास एंड यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट एंड एवरीथिंग एंड टॉकिंग, एंड देन सडनली यू गेन ऑल ऑफ दैट नॉलेज एंड यू हैव दैट यूरिका मोमेंट कि अरे अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है. ये क्यों करना है लाइफ में तुमको? तुम स्टार्टिंग से अगर बच्चों को सिखाओ कि खुद को समझते कैसे हैं, कि तुम्हारा चीट कोड क्या है लाइफ में, अगर तुमको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम खुद के लिए चीट कोड बनाओ कि मैं इसको कैसे ऐसे कूद के ओवरकम करेगा मैं. तो बेसिकली वंस यू डू दैट, life becomes so much easier. And like I said, जैसे the root of a lot of things is overthinking.
the solution ka root of a lot of things is understanding yourself. True. Because then that also helps you understand other people a lot better on a lot of levels. True. भाई इस पे एक और पॉडकास्ट बन सकता है. हाँ, आई थिंक हमने अपना टाइम लिमिट बहुत एक्सीड कर दिया, बहुत ऑफ टॉपिक गए और लोग हमारा पॉडकास्ट देख के बोलने वाले थे इन लोग ने बहुत ज्यादा. पका दिया? नहीं पकाया तो नहीं है मेरे को लगता है. मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक कि मतलब देयर वर टू थिंग्स सो मेजरली एंड इसके बारे में और भी मेरे को डिस्कशन Why करना don't you पड़ता. cut this into 2 parts and like make नहीं part नहीं 1 नहीं and part नहीं नहीं नहीं. This is one and then we'll do one more and then that will be second part. We'll do one more. Oh, you want to do one more? Nice. हाँ मतलब dude पता है every person I've talked with till now wants to do one more podcast. मतलब either it's me or either it's the person. क्योंकि after like talking क्योंकि एक तो one of the thing is कि it's all friends till now अभी तक इस season it's all friends for me. क्योंकि या तो मतलब हर कोई बंदा कुछ नया कर रहा है एक तो पहली बात और दूसरी बात सबके पास कुछ नया बात करने के लिए है सबसे दूसरी बात एंड सबके पास कोई सेट ऑफ आइडियाज हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है सम सेट ऑफ पीपल से और वो लोग थोड़ा रिलेट कर सकते हैं और मेरे को लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए कि दुनिया इतनी खराब नहीं है जितनी हम सोचते हैं और सोशल मीडिया को जो अब नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं लोग वो एक्चुअली पॉजिटिवली वापस गेन किया जा सकता है मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव ओके सोशल मीडिया इज वेरी पॉजिटिव लोगों ने नेगेटिव बना दिया उसको एक और बहुत बड़ा टॉपिक है लेट्स नॉट डिस्कस दिस लेट्स एंड द पॉडकास्ट टुडे इससे पहले कि तेरे को ये कमेंट सेक्शंस में इसके लिए गालियां आना चालू हो हमको खत्म कर देना चाहिए इसको. चलो धन्यवाद सबका आने के लिए ये पॉडकास्ट को धन्यवाद गार्गी यहाँ पे आज मेरे साथ आपका टाइम निकालने के लिए शायद से एक घंटा 1.5 आवर्स हो चुका है तो उसके लिए धन्यवाद Wow, आपका. I didn't expect it to be this long. I really hope people take the time out to listen to our bakwas. It's not bakwas, okay. मतलब the crucial information you gave plus फिर anxiety वाला चीज which is very important. I think it's very important, but I hope people want to listen to it with the same interest that we had while talking about it. So yeah, yeah, we need that. Yes, we do need that. चलो फिर bye. All the best for your podcast, dude. Bye. Thank you. Bye. Thank you.